Hello students, myself Arun Chaudhary. I'm a teacher of Sandipani High Secondary School, Rajuda. Now we are going to start class 12 Commerce Partnership, chapter first. Now in this chapter, first of all, we will learn about capital accounts. Now we have to learn format of capital account. Format of capital account under fixed capital method means स्थायी पूंजी पद्धति. Okay. First of all, we have to make in this method partners capital account. Okay. सबसे पहले हम इस पद्धति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. In partners capital account, in credit side, first of all we have to write by balance BD means opening balance of capital. Now here in this amount column we have to write. Then we have to write by bank or cash means we have to write by additional capital in amount column. Okay. In this side only two amounts we will write, by balance BD and by bank in bracket additional capital. Okay. Only two amounts we have to write in credit side. Then we will come in debit side. First of all, in debit side we have to write two bank or cash means withdrawal of capital. If the partner withdraws capital permanently, okay, we have to remember this word permanently. If the partner withdraws capital permanently, so we have to write here to bank or cash in amount column. Okay, in which date we have to write in date column. Then we will find out to balance CD means closing balance of capital account. So first of all we will do total in credit side. Then we have to less to bank or cash if any. So we will write here and we will less this amount. Then our balance will come. So we have to write here to balance CD in amount column. So here is completed our partners capital account. Okay. 1 minute. Now in this method we have to make partners current account. Okay, means स्थायी पूंजी पद्धति में हमें दो अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट. In this account, first of all we have to write in credit side by balance BD means opening balance. If any in partners current account, if given in question, so we will write here, otherwise we will not write by balance BD means current account balance we have to write here first of all. Then by salary account means here we will write salary means वेतन. अगर पार्टनर्स को वेतन दिया जाना है तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट. देन कमीशन बाय कमीशन, अगर पार्टनर्स को कमीशन देना है तो हम कमीशन भी लिखेंगे. By interest on capital, then we have to write here interest on capital. अगर साझेदारों को उनके पूंजी खातों पर यानी कि पूंजी पर ब्याज देना है तो हमें यहाँ लिखना है. देन बाय प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे साझेदारों के चालू खाते में, और अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे. ठीक है. पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में
क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर लॉस होता है, मतलब लॉस होता है, तो डेबिट साइड। फिर डेबिट साइड में, देन डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मीन्स अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देन टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स आहरण। अगर पार्टनर्स ने आहरण किया है, ठीक है, निजी प्रयोग के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए आहरण किया हुआ है, वो आहरण हम लिखेंगे यहाँ पर। और इस आहरण पर मीन्स ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगता है तो हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे यहाँ पर। देन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स लॉस। लॉस अगर होता है, इफ द लॉस कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो वी विल राइट इन डेबिट साइड। फिर इसके बाद में हमें अमाउंट के कॉलम का टोटल करना है। अमाउंट के कॉलम में से डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम को माइनस करना है। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करेंगे और आएगा हमारा टू बैलेंस सीडी। फिर अगर डेबिट साइड का अगर ज्यादा है तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। अगर ज्यादा इस साइड में डेबिट में, क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे और वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। नाउ टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, स्थायी पूंजी पद्धति। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें दो पद्धतियां दी रहेगी, टू मेथड। उन दो पद्धतियों में हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दी रहेंगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट बनाना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इसके बाद में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज अकाउंट्स। ओके, नाउ वी विल मेक in under the fluctuating capital method partners capital account. Okay, okay students, now we are learning partners capital account under the fluctuating capital method. Okay, in this method we have to make only one capital account, means we have to make partners capital account. In this method account, first of all we will write in credit side by balance BD, means opening balance of capital, okay, in amount column. Then we have to write by bank or cash, means additional capital, in heading by bank or cash. Okay, अगर साझेदार अतिरिक्त पूंजी लाता है तो हमें यहाँ लिखना है। Then we have to write by salary. सैलरी अगर साझेदार को दी है तो लिखना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, मतलब पूंजी पर ब्याज अगर दिया है तो हमें यहाँ लिखना है। देन वी हैव टू राइट बाय कमीशन, मतलब अगर साझेदार को कमीशन देना है तो हमें यहाँ लिखना है क्रेडिट साइड। देन वी विल राइट profit and loss appropriation account, means profit. Okay, we have to write here profit. Then in debit side we will write to drawing, means आहरण। अगर पार्टनर्स ने आहरण किया है तो हमें लिखना है इस साइड। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। अगर आहरण पर ब्याज लगा है साझेदारों को तो हमें यहाँ लिखना है। के बाद में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंस। ओके, बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा आता है और डेबिट साइड का कम आता है तो
हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, डेबिट साइड में, जिस साइड कम आता है उधर टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर में, इट विल कम इन बैलेंसिंग फिगर, ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस, टू बैलेंस सी डी। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सी डी, और ये भी किससे आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ओके। ये जो बैलेंस आया है ये है पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, और हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए। पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में जो ओपनिंग कैपिटल लगाई थी वो लास्ट में एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल बची, मतलब क्लोजिंग कैपिटल क्या है वो जानने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो कंडीशन दी रहेगी हमारे क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन दिस मेथड वी हैव टू मेक टू अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑल्सो। और उसके बाद में एक कंडीशन दी रहेगी हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशनों में सिर्फ अंतर इतना सा है, उसमें जो दो अकाउंट बनाए हैं उन दोनों अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है सिर्फ, मतलब वहां पर हमने बैलेंस नहीं लिखा था इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और एडिशनल कैपिटल भी नहीं लिखी थी। ये दोनों हम ले गए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी अमाउंट लिखी थी मैंने। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सारी अमाउंट को जोड़ दिया, एक अकाउंट बना दिया और इधर भी सारा अमाउंट जोड़ दिया, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम दोनों अकाउंट को मर्ज करके लिखेंगे, मर्ज करके एक अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाएंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट बनाना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन से ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को दिए हुए हैं, जो कि हम इसके बाद में बनाएंगे। और हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में हमें इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ।